रिकॉर्ड मारना है ना, घुमा घुमा कर 1 मिनट घुमा घुमा कर। देखिए, बहुत अहम किताब है। अभी इस मौजू पर कुछ बोलना मुनासिब भी नहीं है और मौका भी नहीं है। हर शख्स को चाहिए कि इस किताब को अपने मुताले में लाए ताकि उसके सामने बहुत सारी हकीकतें वाशगाफ हो सके, जिससे बहुत सारे लोग नावाकिफ हैं। बहुत से अहले इल्म को भी ये किताब मुफीद होंगी, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी इसका रस्म इजरा हो गया है। हम सारे उलमा के बहुत ही मशकूर और ममनून हैं कि उन्होंने इस फरीज़े को अंजाम दिया है। अल्लाह इन सारे हजरात को सेहत और सलामती के साथ रखे, इनका फैज़ अपनी ये रिपोर्ट पेश करें। ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عالی جناب حضرت صدر محترم علماء کرام، دین رحمت ہے ایک کامل و مکمل ضابطۂ حیات جس میں زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، لیکن اس سے مستفید اور فیضیاب ہونے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ علم وہ کنجی ہے جس سے اسلام کی دینی، علمی، ثقافتی، ملی اور روحانی اثاثے تک رسائی ہو سکتی ہے۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ علم سے متعلق تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھیے، اور آپ کے پروردگار بڑے کرم کرنے والے ہیں جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں تمام تر دشواریوں کے باوجود قرآن کریم کی تعلیم کا انتظام فرمایا۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تو اس میں ایک چبوترا تعلیم و تعلم کے لیے خاص کیا تاکہ صحابہ کرام یکسوئی کے ساتھ قرآن و حدیث اور دینی مسائل کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ صفہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ مدرسہ نور المعارف دیا گنج ضلع ارریہ، مدرسہ روضۃ المعارف عزیز نگر افریل ضلع پورنیہ، جامعہ زکریا سید پور کرنکیا ضلع ارریہ، اس طرح کے ملک میں ہزاروں کی تعداد میں قائم مدرسوں کی نسبت اسی صفہ سے ہے۔ حضرات، ابو الحسن علی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ ایک دینی، ملی، تعلیمی، تنظیمی، تحریکی اور فلاحی ادارہ ہے۔ ملک و ملت اسلامیہ کی تعمیر و ترقی، سماجی و معاشرتی اصلاح، نونہالوں اور آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت، دینی تعلیم کے ساتھ عصری علوم سے انہیں آراستہ کرنے کے لیے اس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ابو الحسن علی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے صدر محترم نمونہ اسلاف حضرت مولانا کبیر الدین فاران صاحب مظاہری دامت برکاتہم کی صدارت و قیادت اور جافشانی و قربانی سے یہ ادارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ حضرات، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوہ اور مساکین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے، اور اس شخص کی طرح ہے جو رات بھر تہجد کی نماز پڑھتا ہو، تھکتا نہ ہو، اور اس روزے دار کی طرح ہے جو افطار نہ کرتا ہو۔
अल्हम्दुलिल्लाह अबुल हसन अली एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए ज़रूरतमंदों की हाजात पूरी करने की तरफ तवज्जो दी जाती रही है। इसके ज़ेर एहतमाम दर्ज झेल इदारे नौनिहालों के मुस्तक़बिल को रोशनास और ताबनाक बनाने के लिए अव्वल दिन से जद्दोजहद में मसरूफ़ और सरगर्म अमल है। हिंदुस्तान में दीनी व मिल्ली अमल इल्मी व इस्लाही और दावत व तबलीग का तमाम तर निज़ाम व इस्तेहकाम मदारिस इस्लामिया का मरहून मिल्लत है। हिमालय की तराई में मगरिब से मशरिक़ तक फैली हुई मुस्लिम आबादी जो गुर्बत और जहालत की तारीकी में डूबी हुई है, उन्हें राह रास्त में लाने के लिए क़याम मकातिब व मदारिस की सख्त ज़रूरत थी। इन्हीं हालात के पेश नज़र हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह की यादगार जामिया ज़करिया सैदपुर कायम किया गया, जिसका संग बुनियाद मुहद्दिस कबीर हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह साबिक़ शेखुल हदीस जामिया मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर के मुबारक हाथों 21 फरवरी 1998 को रखा। मदरसे और दीनी दरसगाहों के क़याम का सिलसिला आहद नबवी से जारी है। मदरसा नूरुल मारिफ मौलाना अली मियां नगर दियागंज ज़िला अररिया इस सिलसिले की एक कड़ी है। अबुल हसन अली एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट ने अपने तमाम मकासद के तहत फ़ख्रुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह साबिक़ शेखुल हदीस जामिया मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर की ईमा व हिदायत पर हज़रत मौसूफ के मुबारक हाथों 11 फरवरी 1998 को मदरसा और मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया। हिंदुस्तान में मुसलमानों के ईमान और इस्लाम के इस्तेहकाम और शरीयत की बका के बाब में यहाँ के मदारिस दीनिया का अहम किरदार है। अबुल हसन अली एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट अपने अहम मकासद के तहत मदरसा रौज़तुल मारिफ आज़ीज़ नगर उफरेल पोस्ट खोका ज़िला पूर्णिया जो ट्रस्ट का सदर मकाम भी है, बरकतुल अस्र हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह साबिक़ शेखुल हदीस जामिया मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर की हिदायत पर उनके मुबारक हाथों मदरसा और मस्जिद की बुनियाद 7 मई 1993 बरोज़ जुमा बाद नमाज असर रखी गई। हज़रात, खुदा का शुक्र है कि अबुल हसन अली एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तहत तीनों मदारिस अल्लाह के फज़ल व करम से उलूम दीनिया की हिफाजत व इशाअत कर रहे हैं, जिसमें आप हजरात की दुआएं और ताउन इन इदारों के साथ बराबर जारी है। सामईन किराम, अबुल हसन अली एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट जब से कायम हुआ है अपने मकासद में बेहद कामयाब है। इसके तहत मदारिस व मकातिब आबाद हैं और फलाही उमूर अंजाम दिए जा रहे हैं। खुशी की बात है कि इस ट्रस्ट से सैलाब ज़दा इलाकों में राशन, कपड़े और दवाइयाँ तकसीम हुई और मकानात तामीर हुए, ज़रूरतमंदों की मदद की गई, हैंडपम्प तकसीम किए गए, कई बच्चों की शादी में मदद की गई, बीमारों का इलाज कराया गया, सर्दियों में कंबल तकसीम किए गए। याद रहे कि ये सामान हम किसी का चेहरा देखकर नहीं बल्कि ज़रूरतमंदों को देखकर हिंदू मुस्लिम भाइयों के हाथों तकसीम किया और हिंदू मुस्लिम के दरमियान अदना दर्जे का फ़र्क नहीं रखा। आइंदा भी हम इसी उसूल और आहद पर कायम रहेंगे कि सही खुदा परस्ती और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का खुलासा भी है कि सारी मखलूक खुदा का कुंबा है और उनमें सबसे बेहतर वो है जो खुदा के बंदों की खिदमत करता हो और उम्दा सलूक करता हो। भाइयों, आखिर में आप सभी हजरात से अपील है कि हमें अपने दिली हमदर्दियों, भरपूर ताउन और दुआओं से नवाजते रहें ताकि हम खुदा के बंदों की हर मोड़ पर खिदमत के लिए खड़े रहें। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तहत ये इदारे चल रहे हैं, जिन इदारों का इस रिपोर्ट में तज़किरा किया गया है। इनके अलावा मिल्ली और फलाही और तंजीमी कामें भी अंजाम पा रहे हैं। ये मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इस ट्रस्ट की निस्बत की गई है। उनकी एक किताब है पाजा सुराग़े ज़िंदगी। उन्होंने मदारिस और मकातिब की अहमियत को उजागर करते हुए एक जगह कहा है कि ये मदरसे
दरअसल इंसानियत साजी की कारगाह है और यहाँ इंसानियत साजी और मरदूम साजी का काम अंजाम होता है। और उन्होंने आगे बढ़कर ये कहा है कि ये पावर हाउस के मानिंद होते हैं ये इदारे, यहाँ से इंसानी जिंदगी में बिजली सप्लाई होती है। और उन्होंने एक जगह ये फरमाया कि अगर ये अपनी सप्लाई बंद कर दे तो इंसानियत की खेती मुरझाने लगे। ये मेरे भाइयों, उन्हीं की तरफ निस्बत करके ये ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट के तहत 4-5 इदारे तो यहाँ चल रहे हैं और जमीनी सतह पर फलाही कामें अंजाम पा रहे हैं। एक मोमिन का अखलाकी फरीजा है और जिम्मेदारी है कि वो इस ट्रस्ट को जिंदा रखे और इसमें जिंदगी की चिराग के लिए तेल डालता रहे। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इस ट्रस्ट को हम और आप मजबूत से मजबूत तर करने की कोशिश करेंगे ताकि इस तरह के इदारे इस ट्रस्ट के तहत पनपते रहें और जमीनी सतह पर फलाही काम अंजाम पाते रहें। हजरात, अब थोड़ी देर में एक अहम शख्सियत जिनकी सदारत में हमारा और आपका ये काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है और कारवा मंजिल से करीब तर होता जा रहा है, उनके खिताब को हम और आप सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन आपके दरमियान और उस अजीम शख्सियत के दरमियान सिर्फ 8 से 10 मिनट के लिए हम हायल हुआ चाहते हैं। इस स्टेज पर इलाके के एक नौजवान फाजिल, जवान जज्बा रखने वाला आलिम दीन और अररिया की सरजमीन पर अपनी इल्मी बहारें लुटाने वाला नौजवान आलिम जनाब मौलाना मुफ्ती इनामुल बारी साहब कासमी दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा है। हम उनको थोड़ी देर के लिए जहमत दे रहे हैं, फिर इंशाअल्लाह मेहमान मुकर्रम का खिताब होगा और उनके खिताब के बाद फिर इंशाअल्लाह वो खुशनुमा मंजर जिसके लिए ये बज़्म आरास्ता की गई है वो आपके रूबरू